welcome to Accounts Hub. In the previous video, which was session 1A, we have learned some of the basic concept of accounting. We saw what is accountancy and the need for accountancy. We also saw what is an account and the two sides of an account, that is debit and credit. Finally, we discussed in detail the three types of accounts: personal accounts, real accounts and nominal accounts. In case you have missed that session, you will find the link for it in the description below. So now let's get started with session 2A. Hi friends, so you know now what is debit, credit, some idea you have about debit, credit, left hand side, right hand side, some idea you have about this particular thing. Now we move to the next stage of accounting, and what is that? We have to record the transactions in some accounts where something has to be recorded on the left hand side, that means the debit side, and certain transactions have to be recorded on the credit side, that means the right hand side. We are at the fundamental, the basic concept and the most important concept in accounting. If you understand today's session, half the job is done. So, you will understand accounts, and if you don't understand today's session, you will find it very difficult to understand accounts. So, let's try and understand this very quickly as to what are we going to do with this debit and credit. You are all aware that when we drive the car, in India we drive on the left hand side of the road. I don't know how many of you are aware that in majority of the countries across the world, the cars are driven on the right hand side of the road. Now this is absolutely stupidity if you look at it, because what happens is कि अगर कार मैन्युफैक्चरर है, he has to make two types of cars. One जिसको लेफ्ट हैंड साइड पे चला सकते हैं, second which has to be driven on the right hand side of the road, and it is a driver's nightmare. If I am driving in India and I go to US, it's a problem for me to drive there in US because the cars are driven on the right hand side. This was stupidity. I think uniformly it should have been across the world, the same concept should have been followed, and the exception should not have been made as the way it has been done as far as driving of cars is concerned. But then when this accounting concept started, I think they acted a little intelligently, and what they did was that rules of debit and credit means what is to be recorded on the debit side and what is to be recorded on the credit side. They decided this uniformly across the world. That means whatever we are going to discuss now, this is going to universally apply wherever you may go. Whenever you talk of accounting, this debit and credit will remain unchanged, and everybody across the world is doing the same, whether it is US, Europe, Japan, China, anywhere, everywhere it is the same concept. What is important now is that how do we record the transactions on the debit and credit side? What is the kind of transactions we will be recording on the debit or the credit side, as the case may be. Now, before we even come to the rules of debit and credit, now I am discussing just a few basic principles. First is double entry system. Accounting world over is a double entry system. That means every transaction will have two recordings, two aspects. एक बार उसको डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे और सेम ट्रांजैक्शन वुड बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट ऑल्सो. अब ये कैसे होगा, we'll just see when we practically come to it. But then you must know that what we are doing is double entry system of accounting, and in this double entry system of accounting, we are going to record the transaction. Every transaction will have one debit aspect and one credit aspect. Second thing is that owner and business are treated as two separate entities. मतलब ये कि I may be a proprietor, I start a business. I think we saw in 1A, all of you are businessmen, all of you have started business, सभी business कर रहे हो. So the basic funda of account, सबसे पहले तो businessman बन जाओ सारे. So all of you think like a businessman. So आप businessman हो. So now अगर आपका business है, you have started this business, you have made the investment to start that particular business, आप खुद ही कर रहे हो, लेकिन accounting में ऐसा नहीं होगा. Accounting में proprietor, owner of the business will be treated separately, and business will be treated separately, and accounting will be of the business, not of the proprietor. So हमें business से मतलब है. So accounting is of business, and there are separate entities. The owner or the proprietor is a separate entity vis-a-vis the business. Third important thing which we must know is that we record only the financial transactions in accounts. There can be some very important transactions in a business
अगर उनका फाइनेंशियल दे कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, दे विल बी रिकॉर्डेड. सो एवरी ट्रांजेक्शन को हम मनी में कन्वर्ट करके मनी की फॉर्म में उसको रिकॉर्ड करेंगे, नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्वालिटी और इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्टिव मैनर्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे. अब लग रहा होगा कि ज़्यादा समझ में नहीं आया कि ये क्या था, क्या बोला. डजेंट मैटर, ज़्यादा समझने की ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज वॉट इज़ हैपनिंग इज व्हेन वी प्रैक्टिकली यूज दिस पर्टिकुलर नॉलेज तब आपको समझ में आ जाएगा. एंड मोर ओवर सेकेंड थिंग इज दैट इस सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर वील हैव अ थ्योरी सेशन सेपरेटली वेयर वील बी डिस्कसिंग ऑल दिस थ्योरी विच इज़ बिहाइंड दिस प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग. सो अभी के लिए इतना काफ़ी है कि यू नो दीज बेसिक थिंग्स यू नो व्हेन वी गेट इनटू द अकाउंटिंग पार्ट ऑफ इट. अब आ जाते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. As I said, these rules uniformly world over, same rules, all countries, every accountant, ताकि ये कोई क्लैश नहीं हो, कि समझना नहीं पड़े कि किसने क्या किया है. Uniformly, all companies are following the same accounting method. Accounting worldwide is done in this particular manner. So what we have is, we have 3 types of accounts. So what you should know is that personal accounts के अंदर rule of debit और credit would be डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि जिस भी पर्सन से हम डील कर रहे हैं, अगर वो हमें कुछ दे रहा होगा तो हम उसको क्रेडिट दे देंगे, उसके क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे. अगर वो कुछ रिसीव कर रहा होगा हमसे, देन वी विल बी रिकॉर्डिंग ऑन द डेबिट साइड ऑफ दैट पर्टिकुलर अकाउंट ऑफ दैट पर्सन, राइट. सो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर इन द केस ऑफ पर्सनल अकाउंट्स. नेक्स्ट इज रियल अकाउंट्स. ये रियल अकाउंट्स हमने देखा था, हमारे एसेट्स के अकाउंट, कैश, ऑल दोज अकाउंट्स, फर्नीचर, लैपटॉप, बिल्डिंग, ऑल दीज अकाउंट्स आर रियल अकाउंट्स. उसके लिए द प्रिंसिपल इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. दैट मीन्स, से फॉर एग्जांपल कैश. अगर कैश जब हमारे बिजनेस में आएगा, हम कैश रिसीव करेंगे तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे. जब हम कैश पे करेंगे, व्हेन वी आर पेइंग कैश, कैश इज गोइंग आउट, then it will be recorded on the credit side of cash account. Third was nominal accounts. Nominal accounts में the rule which we'll be following is debit all expenses and losses and credit all gains and incomes. That means whenever we incur an expense, we'll record on the debit side of that account. अगर हमने rent pay किया, so rent के debit side पर हम record करेंगे इसको कि rent paid. Similarly, when we pay salary, it will be recorded on the debit side. अगर हमारे को कोई इनकम आएगी, लेट्स सपोज वी आर रिसीविंग सम कंसल्टेंसी चार्जेस, देन अगर ये हमारी इनकम है, देन कंसल्टेंसी चार्जेस के क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे. अब ये बोलने में तो, थ्योरी में तो समझ में नहीं आया क्लियरली. सो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ वी आर गोइंग टू डू अबाउट, व्हाट आर वी गोइंग टू डू अबाउट इट. लेजर अकाउंट हमने बेसिक देखा था कि भाई लेजर अकाउंट एक टी फॉर्म अकाउंट है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड. Now we'll draw the ledger account. So ledger account में if you look at ledger account, the ledger account has 4 columns on each side. Debit side पे भी 4 कॉलम हैं, क्रेडिट साइड पे भी 4 कॉलम्स हैं. सेम, इट इज़ अ मिरर इमेज, दोनों साइड पे सेम कॉलम्स हैं. ऑब्वियस बात है, अगर कोई ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड करनी है तो डेट तो उस पर डालनी पड़ेगी और अमाउंट भी डालना पड़ेगा. मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है, हम मनी में ही मेजर करेंगे तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट होगा. सो वील हैव कॉलम फॉर डेट एंड वी हैव कॉलम फॉर अमाउंट. एक पर्टिकुलर्स का कॉलम है जिसमें हम उस ट्रांजैक्शन की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है उसके अंदर डालेंगे. क्या इन्फॉर्मेशन डालेंगे ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको. देन देर इज़ 1/4 कॉलम विच इज़ फोलियो. Now, उस कॉलम को अभी हम पेंडिंग छोड़ रहे हैं. When we use this particular column, we'll tell you how this column has to be used. So we'll be presently using date, particulars and amount columns as you can make out on both sides. We'll be making use of these 2 columns. अब हमें कैसे प्रोसीड करना है, थ्योरी में बता देता हूँ पहले, फिर इसको प्रैक्टिकली करेंगे. थ्योरी में ये है, प्रोसेस ये है कि जो भी ट्रांजैक्शन है उसको हमें ट्रांजैक्शन को पहले एनालाइज करना है, अंडरस्टैंड करना है. हमें ये देखना है इस ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट क्या हैं, और उसके बाद हमें 2 अकाउंट डिसाइड करने हैं कि कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं उस ट्रांजैक्शन की वजह से, और उन दोनों ट्रांजैक्शंस का जो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं उनका नेचर क्या है. उनका नेचर पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है. एंड देन फिर वो जो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट हमने डिस्कस किए
जो हमने अभी जो प्रिंसिपल्स ऑफ दिस रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हमने डिस्कस किए थे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स, वो अप्लाई करके हमें उसको रिकॉर्ड करना है। चलिए एक काम करते हैं, लेट अस सी सम ट्रांजैक्शंस, बिकॉज जब तक हम ट्रांजैक्शंस नहीं देखेंगे, उसका इम्प्लीकेशन नहीं देखेंगे, तब तक हमारे को वो समझ में नहीं आएगी कॉन्सेप्ट। सो नाउ व्हाट वी डू इज, लेट अस लुक एट सम ट्रांजैक्शंस। सो what we have is, we are just taking a simple transactions right now. These are 7 transactions which are there. So 1st of April 2020 को Peter starts business by introducing rupees 1 lakh in cash. इसको हम एनालाइज करते हैं। अब वन थिंग इज कि हमने ये डिसाइड किया था कि अकाउंटिंग जो करेंगे हम बिजनेस की करेंगे, प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग नहीं कर रहे। प्रोप्राइटर कौन है इस केस के अंदर? पीटर। बिजनेस जो है उसने स्टार्ट किया, अकाउंटिंग हम बिजनेस की कर रहे हैं। सो बिजनेस की जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं उसमें 1 लाख रुपीज़ प्रोप्राइटर ने 1 लाख रुपया उस बिज़नेस में डाला। अब नाउ सेपरेट एंटिटी है, सो नाउ बिजनेस के पर्पज़ से हम देखेंगे अगर, तो 1 लाख रुपया बिजनेस के पास रिसीव किया, 1 लाख रुपया कैश में, और किसने दिया? पीटर ने दिया, जो कि प्रोप्राइटर है बिजनेस का, राइट। सो नाउ दैट मीन्स अगर हम डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से चलें, ड्यूल इफेक्ट सिस्टम के हिसाब से चलें, तो इस ट्रांजैक्शन को हमारे को ब्रेक करके 2 जगह रिकॉर्ड करना है। कौन से 2 अकाउंट्स में? एक तो पीटर प्रोप्राइटर जो है उसके अकाउंट में हमें रिकॉर्ड करना है क्योंकि उसने दिया है, एंड सेकंड इज दैट कैश वी हैव रिसीव्ड, सो कैश अकाउंट में वी हैव टू रिकॉर्ड दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। सो नाउ कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट के लिए रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। Is cash coming in or cash going out? Cash is coming in. So we'll record this on the debit side of cash account as to Peter proprietor. We'll write date डालेंगे date column में, description में लिखेंगे to Peter, और amount column के अंदर 1 लाख रुपया लिख देंगे। Folio column, F column, we are leaving it blank for the time being. We'll see what is to be done with that column later on. अब इसका second aspect क्या है कि Peter has paid this particular amount, so Peter's account has to be debited or credited. Personal accounts में हमने क्या देखा था? Debit the receiver, credit the giver. Peter इस केस में क्या है? Giver है। So Peter's account has to be credited means Peter के credit side पे we have opened a cash account. Cash account में हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया। Now we'll also open Peter's account. अभी कहाँ ओपन करेंगे? कहाँ खुलते हैं अकाउंट्स ये? We have a thick register running from, उसके ऊपर मशीन नंबर होता है 1 to say 300 पेजेस हैं उसके अंदर। सो पेज नंबर 1 पे मैंने कैश अकाउंट खोल लिया, और पेज नंबर 15 पे मैंने पीटर का अकाउंट खोल दिया। अब पीटर का अकाउंट सेम बनेगा, सेम कॉलम्स, एवरीथिंग इज़ देयर। उसके अकाउंट में मैंने क्रेडिट कर दिया कि बाय कैश रिसीव्ड रुपीज़ 1 लाख इन द अमाउंट कॉलम। डेट के अंदर डेट डाल दी। आई थिंक डेट तो डालनी है, कोई उसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। वील सी इट इन द जर्नल, देयर इज़ अ मैनर ऑफ पुटिंग डेट ऑल्सो, उसको भी हम डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग यू कैन पुट द डेट। डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया कि भाई बाय कैश, उससे कैश रिसीव किया है, सो उसको हमने बाय कैश क्रेडिट साइड पे लिख दिया, और अमाउंट में 1 लाख रुपया मैंने उसके अमाउंट में डाल दिया। नाउ 2nd of April 2020 आई डिपॉजिट 60,000 रुपीज़ कैश इन, आई ओपन अ बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट देयर बॉम्बे बैंक लिमिटेड में मैंने बैंक अकाउंट खोल के उसमें जमा करा दिया। डू यू अंडरस्टैंड ये बैंक अकाउंट क्या होता है? बैंक अकाउंट ये होता है कि भाई इंस्टेड ऑफ कीपिंग कैश विद माई सेल्फ, देर आर बैंक्स, मैं उस बैंक में जाके एक अकाउंट खोलता हूँ और उसमें अपना पैसे डिपॉजिट करा देता हूँ उस अकाउंट के अंदर। सो पहला तो ये समझें कि ये बैंक है क्या चीज़। बैंक तो एक इंस्टीट्यूशन है जिसका काम है कि मेरे से पैसे लेके रख देना अपने पास, और मेरे अकाउंट में उसमें एंटर कर लेता है, और जब भी मैं चाहूँ वो पैसे उससे बैंक से ले सकता हूँ मैं। अब उसमें कॉन्सेप्ट चेक का भी आता है, विल कम टू दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑल्सो जब मैं चेक इशू करूँगा तो। अब बैंक जो है ये क्या अकाउंट होगा? इज़ इट अ रियल अकाउंट, इज़ इट अ पर्सनल अकाउंट, और इज़ इट अ नॉमिनल अकाउंट? खर्चा तो बिल्कुल नहीं है, सो नॉमिनल तो है नहीं। It is a personal account because bank is like a separate person, separate identity. So bank is a person for me, a separate person. अब क्या हुआ कि मैंने बैंक अकाउंट खोला और बैंक को ले जाके मैंने उसको 60,000 रुपीज़ कैश बैंक को मैंने दे दिया। अब क्या हो रहा है इस ट्रांजेक्शन को? लेट अस एनालाइज अगेन, सेम एनालिसिस आई विल डू। कौन से 2 अकाउंट्स इफेक्टेड हैं? बैंक अकाउंट
सेकंड इज कैश अकाउंट। नाउ बैंक क्या है, अभी हमने डिस्कस किया, पर्सनल अकाउंट है। रूल क्या है पर्सनल के लिए, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सो बैंक के डेबिट साइड पे आई राइट टू कैश 60,000 रुपीज़, डेट ऑफ कोर्स डाल दूंगा मैं डेट कॉलम में, अमाउंट में 60,000 लिखूंगा, वहाँ पे लिख दूंगा टू कैश। सो बैंक को मैं डेबिट कर दूंगा 60,000 रुपीज़ से, बिकॉज बैंक इज़ द रिसीवर, बैंक को मैंने पैसे दिए, बैंक इज़ द रिसीवर। अब कैश अकाउंट मैंने ऑलरेडी खोला हुआ है, कैश अकाउंट में ऑलरेडी मेरे पास एंट्री एक ऑलरेडी आ रही है डेबिट साइड पे 1 लाख रुपए की। नाउ कैश इज़ गोइंग आउट, जब कैश रिसीव हुआ था, कैश वॉज कमिंग इनटू द बिजनेस, तो मैंने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया था। अब कैश जा रहा है तो मैंने कैश के क्रेडिट साइड पे बाय बैंक, दैट मीन्स बाय बॉम्बे बैंक लिमिटेड, मैंने वहाँ पर क्रेडिट साइड पे लिख दिया बाय बॉम्बे बैंक, डेट डाल दी और अमाउंट कॉलम में 60,000 रुपीज़ लिख दिया। सो मेरी ये 2 ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हो गई, कैश अकाउंट के अंदर, पीटर्स अकाउंट के अंदर और बॉम्बे बैंक के अंदर, ये मेरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गई। अब थर्ड ट्रांजेक्शन जो मैंने एंटर करी, मैंने फर्नीचर परचेज किया ऑन क्रेडिट फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर 30,000 रुपीज़। 30,000 का मैंने मॉडर्न फर्नीचर से ये फर्नीचर परचेज कर लिया। अब इस ट्रांजेक्शन को एनालाइज करते हैं। सो इस ट्रांजेक्शन को सेम एनालिसिस इज देयर, इसको जब हम एनालाइज करते हैं देन वी कम अक्रॉस द सेम थिंग कि फर्नीचर इज कमिंग इन, और इस केस में मैंने अभी कैश पेमेंट नहीं करी है उसकी। सो हु इज गिविंग मी द फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर इज गिविंग, बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट एंड कैश। फर्नीचर मैं 2 तरीके से परचेज कर सकता हूँ, एक तो मैं कैश लेके जाऊँ, उसको कैश दूँ, फर्नीचर लेकर आ जाऊँ, उस केस में ट्रांजेक्शन क्या होगी, फर्नीचर इज कमिंग इन, कैश इज गोइंग आउट। अब इस केस में क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने कैश नहीं दिया है, सो मॉडर्न फर्नीचर इज गिविंग मी द फर्नीचर। सो अब इसको एनालाइज करते हैं इस ट्रांजेक्शन को। अगेन सेम थिंग, फर्नीचर इज अ रियल अकाउंट एंड मॉडर्न फर्नीचर इज अ पर्सनल अकाउंट। रियल का क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो फर्नीचर अकाउंट में आई रिकॉर्ड दिस एज डेबिट साइड पर मैं रिकॉर्ड करूंगा, डेट डालूंगा, अमाउंट कॉलम में अमाउंट डाल दूंगा 30,000 रुपीज़, वहाँ पे लिख दूंगा टू मॉडर्न फर्नीचर 30,000 रुपीज़। नाउ मॉडर्न फर्नीचर इज़ अ पर्सनल अकाउंट। उस पर्सनल अकाउंट में क्या रूल था इसका, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। मॉडर्न फर्नीचर रिसीवर है कि गिवर है, इट इज़ अ गिवर इन दिस पर्टिकुलर केस। सो मॉडर्न फर्नीचर के अकाउंट में ऑन द क्रेडिट साइड पे आई विल राइट बाय फर्नीचर, डेट डालूंगा, अमाउंट कॉलम के अंदर 30,000 रुपीज़ लिख दूंगा, दैट वुड कंप्लीट माई इफेक्ट ऑफ डेबिट एट क्रेडिट ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। चलिए एक बार सारी ट्रांजेक्शन्स देख लेते हैं, देन वी विल सी वेयर डू वी रीच। ऑन 2nd April आई पे कैश टू मॉडर्न फर्नीचर रुपीज़ 5,000। 30,000 का फर्नीचर खरीद लिया था मैंने उनसे, मैंने उनको 5,000 रुपया कैश दे दिया। अब इस ट्रांजेक्शन को एनालाइज करें हम, कैश 5,000 रुपये जा रहा है, रियल अकाउंट क्या उसका रूल था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश इज गोइंग आउट। सो कैश के तो क्रेडिट साइड पे मुझे रिकॉर्ड करना है इसको, बिकॉज कैश इज गोइंग आउट। कैश अकाउंट मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, नया अकाउंट नहीं खोलूंगा, उसमें ऑलरेडी 2 ट्रांजेक्शन्स हैं, उसमें ये ट्रांजेक्शन भी जाके ऑन द क्रेडिट साइड आई विल राइट बाय मॉडर्न फर्नीचर ऑन द क्रेडिट साइड, डेट डाल के एंड आई विल राइट द अमाउंट 5,000 रुपीज़। सो इट विल बी पेड कैश टू मॉडर्न फर्नीचर, कैश को मैंने क्रेडिट कर दिया। अब मॉडर्न फर्नीचर सेकेंड अकाउंट है जो इफेक्टेड है। अब उसमें क्या रूल था पर्सनल अकाउंट में, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। मॉडर्न फर्नीचर इस केस में रिसीवर है कि गिवर है, रिसीवर, बिकॉज आई एम गिविंग हिम कैश। फर्नीचर की एंट्री में ऑलरेडी जब वो गिवर था मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, अब वो रिसीवर है। नाउ वंस ही इज अ रिसीवर देन व्हाट हैपन्स इज, उसके डेबिट साइड पे आई विल बी रिकॉर्डिंग दिस, डेट डाल के टू कैश एंड अमाउंट कॉलम के अंदर आई विल राइट 5,000 रुपीज़। सो दिस वुड कंप्लीट द डेबिट एस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। Now we come to 3rd of April. 3rd of April को the transaction which I have entered into is I have purchased a Bell laptop by issuing a check of rupees 35,000. इस ट्रांजेक्शन को जरा हम समझते हैं, एनालाइज करते हैं कि ये हो क्या रहा है। नाउ मैंने लैपटॉप परचेज़ किया बेल का, कंपनी का। वो लैपटॉप जो मैंने परचेज़ किया है वो मैंने कैश पे नहीं किया, उसके लिए मैंने क्रेडिट पे नहीं लिया, मैंने चेक इशू किया है। एक तो ये चेक इशू करने का कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज़ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ चेक, इसको हम कैसे एनालाइज करेंगे। लैपटॉप तो मैंने परचेज़ किया है, लैपटॉप तो मेरे बिजनेस में आ रहा है, लैपटॉप तो मैं रिसीव कर रहा हूँ, रियल अकाउंट है, सो वो आई कैन एनालाइज। पहले चेक का इम्प्लीकेशन समझ लेते हैं, चेक क्या है। डू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ चेक? चेक ये होता है
कि मैंने जो बैंक अकाउंट है, अब बैंक में मैंने पैसे जमा करा दिए, बैंक में मेरे पैसे पड़े हुए हैं। नाउ व्हाट हैपन्स इज कि अगर मेरे बैंक में पैसे पड़े हैं, मुझे किसी को पेमेंट करनी है, तो मैं क्या करूँगा? हर बार बैंक में जाके और बैंक को बोलूँगा जी पैसे दे दो इस आदमी को, विच इज़ वेरी अनप्रैक्टिकल। सो चेक इज़ एन इंस्ट्रक्शन और एन इंस्ट्रूमेंट। इट्स अ चेक, आपने देखा होगा ज़रूर, आई एम श्योर 11th क्लास में पहुंच गए तो चेक तो कहीं ना कहीं ज़रूर देखने को मिला होगा आपको। चेक इज़ बेसिकली यू मेक अ चेक इन द नेम ऑफ द पर्सन जिसको पेमेंट करनी है। वो पर्सन कैन गो टू द बैंक अकाउंट एंड कलेक्ट द पेमेंट फ्रॉम द बैंक। चेक इज़ अ बेसिकली एन इंस्ट्रक्शंस आई एम गिविंग टू द बैंक टू मेक पेमेंट टू सच एंड सच पर्सन। अब इस दिस केस के अंदर मैंने क्या किया है, मैंने लैपटॉप परचेज़ किया और उसको चेक इशू कर दिया। अब चेक इशू करने का मतलब ये है कि बैंक को इसको पेमेंट देनी है 35,000 रुपीज़। सो चेक इशू का इम्प्लीकेशन ये है कि बैंक बिकम्स द गिवर। बैंक ने पेमेंट दे दी, वो दे देगा या दे दी है। सो नाउ अब व्हाट इज हैपनिंग, रियल अकाउंट लैपटॉप इज कमिंग इन। सो लैपटॉप अकाउंट विल बी डेबिटेड डेट 3rd of April 2020 टू बैंक, बिकॉज बैंक दूसरा अकाउंट जो अफेक्टेड है वो बैंक है। सो वहाँ पे आई विल राइट टू बैंक ₹35,000 रुपीज़ per laptop purchase for ₹35,000. So I'll write this in the laptop account. On the other hand, in the bank account, what I'll be doing is bank becomes the giver here, because मैंने तो चेक दिया, लेकिन मेरे चेक के बेसिस पर बैंक ने पेमेंट दे दी बेल को, जो जिस कंपनी से मैंने लैपटॉप खरीदा था। So the bank account, bank becomes the giver. So on the credit side of the bank account, I'll be writing buy Bell for laptop, और वहाँ पर जो है अमाउंट कॉलम के अंदर आई विल बी पुटिंग दिस अमाउंट ऑफ 35,000 रुपीज़। सो दिस विल बी द एनालिसिस ऑफ द ट्रांजैक्शन फॉर परचेज ऑफ लैपटॉप अगेंस्ट चेक इशूड फ्रॉम द बैंक। 4th of April को आई पे सैलरी टू जॉन ₹5,000। नाउ सैलरी इफ़ आई पे टू जॉन, हियर ये मेंशन नहीं है कि बैंक से दी है, सो प्रिजम्पशन यहाँ पे ये होगी कि कैश में मैंने सैलरी दी है। सो कैश में जो मैंने सैलरी दी बैंक को, ये जॉन को, उसके अंदर अब क्या ट्रांजेक्शन है? कैश तो मैं दे रहा हूँ, आपको सबको पता चल गया, रियल अकाउंट है, प्रिंसिपल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, कैश इज़ गोइंग आउट। सो कैश के तो क्रेडिट साइड पे ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी। कैश अकाउंट ऑलरेडी मेरे पास है, उसमें कुछ एंट्रीज ऑलरेडी हैं, उसी में मैं जाके लिख दूंगा बाय जॉन या बाय सैलरी आई विल राइट, और बाय सैलरी लिख कर 5,000 रुपीज़ आई विल राइट इन द अमाउंट्स कॉलम। एंड जो नाउ द क्वेश्चन कम्स कि हु विल आई डेबिट। अब जॉन को तो मैंने दिए पैसे, लेकिन मैं जॉन को डेबिट नहीं करूंगा यहाँ पर, बिकॉज जॉन इज़ नॉट द रिसीवर। जॉन यहाँ पर सैलरी मिल रही है, सो सैलरी इज़ इन द नेचर ऑफ एन एक्सपेंस। सो जॉन को मैंने पेमेंट उसको दी नहीं है कि भाई आपसे मैंने वापस लेनी है या उसको ऑब्लाइज नहीं किया है, मैंने सैलरी दी है। सो आई विल बी रिकॉर्डिंग दिस इन द सैलरी अकाउंट, और बिकॉज सैलरी इज़ द सेकेंड अकाउंट विच इज़ अफेक्टेड, और सैलरी इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट के लिए क्या रूल था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। सो सैलरी इज़ एन एक्सपेंस हियर, सो सैलरी के डेबिट साइड पे आई विल बी राइटिंग टू कैश, और वहाँ पर मैं ये 5,000 रुपीज़ अमाउंट कॉलम के अंदर डालूंगा, विच रिफ्लेक्ट्स कि भाई मैंने 5,000 रुपीज़ सैलरी पे कर दी। नाउ लास्ट ट्रांजेक्शन विच वी आर कंसिडरिंग राइट नाउ इज ऑन 10th of April. सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव इशूड अ चेक टू मॉडर्न फर्नीचर। अब चेक आपको समझ में आ गया कि चेक क्या होता है। मॉडर्न फर्नीचर इज़ अ पर्सनल अकाउंट। बैंक जो इसको मैंने इंस्ट्रक्शंस दी चेक इशू करने का मतलब बैंक ने मेरे बिहाफ पे पेमेंट कर दी। सो दोनों अकाउंट्स पर्सनल अकाउंट्स अफेक्टेड हैं इन दिस पर्टिकुलर केस, और दोनों पर्सनल क्या हैं? मॉडर्न फर्नीचर और बैंक। दिया मैंने चेक है, लेकिन इफेक्ट बैंक अकाउंट हो रहा है। प्लीज़ रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। अभी ऑलरेडी समझा दिया आपको कि चेक इज़ एन इंस्ट्रक्शन। सो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रिसीवर इज मॉडर्न फर्नीचर, सो मॉडर्न फर्नीचर के डेबिट साइड पे आई विल राइट टू बैंक, और अमाउंट कॉलम के अंदर लिखूंगा 15,000। एंड सिमिलरली बैंक अकाउंट में बाय मॉडर्न फर्नीचर ऑन द क्रेडिट साइड आई विल राइट दिस एंट्री एंड 15,000 रुपीज़ आई विल राइट देयर। सो दिस इज हाउ वील बी एनालाइजिंग एंड वील बी रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। सो हमने क्या पर्पस क्या था, व्हाट वर वी डूइंग? वी वर सीइंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। हमने रूल्स देख लिए। तीन टाइप के अकाउंट्स हो सकते हैं। तीनों टाइप के अकाउंट्स के अंदर क्या रूल्स हैं हमने ऑलरेडी देख लिया। दिस इज़ ऑलरेडी देयर। आई थिंक अब तक तो आपको पता चल जाना चाहिए।
तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो अकाउंट्स आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अगर ये अकाउंट आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, सारी ज़िंदगी अकाउंट्स में स्ट्रगल करते रहोगे, नहीं समझ में आएगा। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच यू मस्ट अंडरस्टैंड कि डेबिट और क्रेडिट कब करना है। एंड अदरवाइज अगर आपको रूल नहीं पता कि लेफ्ट हैंड साइड पे चलाना है और राइट साइड पे रोड के चलाना शुरू कर दोगे तो क्या होगा, यू नो, डिज़ास्टर। अकाउंट्स में भी यही होने वाला है। अगर आपको डेबिट क्रेडिट ही समझ में नहीं आएगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट होना है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होना है, तो डिज़ास्टर होने वाला है। सो एनालाइज द ट्रांजैक्शन, अंडरस्टैंड द टू अकाउंट्स इफेक्टेड, बिकॉज डबल एंट्री सिस्टम है, ड्यूल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, एक डेबिट होना है, एक क्रेडिट होना है। उनका नेचर देखो अकाउंट्स का, एंड देन अप्लाई दिस रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एंड डिसाइड व्हाट इज़ टू बी डन। अब ये सारा हमने कर लिया। ये सारा करने के बाद वी हैव बहुत सारे अकाउंट्स हमारे पास आ गए, 6-7 अकाउंट जितने भी हैं, अभी एक एक करके सारे अकाउंट देख लेते हैं। सो वी हैव कैश अकाउंट। पहले हम कैश अकाउंट को बैलेंस करते हैं। अब बैलेंस कैसे किया जाएगा, डेबिट साइड पे भी कुछ एंट्रीज़ हैं, क्रेडिट साइड पे भी कुछ एंट्रीज़ हैं। जिसका टोटल ज़्यादा है वो टोटल हम बॉटम पे दोनों साइड लिख देंगे। अब जो डिफरेंस एक साइड पे, तो वो टोटल हमने ज़्यादा वाला लिख ही लिया। जैसे इस केस के अंदर डेबिट साइड पे सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन है 1 लाख, सो हम 1 लाख की ट्रांजैक्शन नीचे 1 लाख लिख देंगे, एज यू कैन सी। सेम अमाउंट एट द सेम लेवल वील राइट ऑन द क्रेडिट साइड ऑल्सो। अब इसमें डिफरेंस आ गया, जो डिफरेंस है वो बैलेंस है। सो दिस बैलेंस को क्या कहेंगे, इस बैलेंस को हम कहेंगे डेबिट बैलेंस, बिकॉज डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है क्रेडिट साइड से, तो देयर इज़ अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹30,000 इन कैश अकाउंट। अब इसका क्या मतलब है, अब इसको हम निकाल देंगे, 30,000 रुपीज़ इस तरीके से लिख देंगे, और यहाँ पे बिकॉज लिखा क्रेडिट साइड पे जाएगा, बट दिस इज अ डेबिट बैलेंस, सो वील बी राइटिंग बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 30,000 रुपीज़। व्हाट डज दिस इम्प्लाई, दिस इम्प्लाई दैट 30,000 रुपये मेरे पास कैश होना चाहिए। एंड इफ़ यू एनालाइज ऑल द ट्रांजेक्शन्स यू विल फाइंड कि 30,000 रुपीज़ मेरे पास कैश बचेगा इफ़ आई हैव डन ऑल दीज ट्रांजेक्शन्स। सिमिलरली वी हैव पीटर्स अकाउंट। पीटर के अकाउंट में वी विल फाइंड कि भाई देयर इज़ ओनली 1 एंट्री, क्रेडिट साइड पे 1 लाख रुपया है। इस अकाउंट को भी हम बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग के लिए आई टोल्ड यू कि जिस साइड पे टोटल ज़्यादा अमाउंट ज़्यादा है उसका टोटल हम दोनों साइड लिखकर और उसको बैलेंस करने के लिए लिख देंगे। सो यहाँ पर ऑन द डेबिट साइड विल राइट टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 1 लाख रुपीज़, बट दिस इज़ अ क्रेडिट बैलेंस। इसको लिखते हम बैलेंस जहाँ पर आएगा, इसका मतलब वो साइड शॉर्ट है तभी हम वो डिफरेंस डाल रहे हैं वहाँ पर। सो दिस इज़ अ क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस का मतलब ये है कि उसने पीटर ने हमें 1 लाख रुपया दिया हुआ है, and we owe this amount to Peter. So this is what we basically imply. Then we have bank account. अब बैंक अकाउंट के अंदर you will find there is a transaction on the debit side, there are transactions on the credit side. 60,000 है, so 60,000 हमने बैलेंस डेबिट साइड वाला दोनों साइड लिख दिया, बैलेंसिंग करके 10,000 रुपये बैलेंस बचा। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका 10,000 रुपये जो बैलेंस बचा है, दिस इज़ अ डेबिट बैलेंस, मीन्स बैंक से हम अभी 10,000 रुपये हमने लेना है। दिस इज़ आवर बैलेंस विद द बैंक, दिस इज़ द अमाउंट विच बैंक स्टिल हैज़ ऑन आवर बिहाफ। हमने 60,000 दिया था, 2 पेमेंट्स हमने कर दी, 10,000 रुपये बैलेंस बचा हुआ है। सो दिस अमाउंट बैंक ओज टू अस। नाउ सिमिलरली वील हैव फर्नीचर अकाउंट विच इज शोइंग अ डेबिट बैलेंस ऑफ 30,000 रुपीज़, means we have furniture of 30,000 rupees, we possess this particular furniture, we are the owners of this furniture of 30,000 rupees. मॉडर्न फर्नीचर का अकाउंट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मॉडर्न फर्नीचर में क्रेडिट साइड पे 30,000 रुपीज़ की एंट्री है। व्हेन वी बैलेंस दिस पर्टिकुलर अकाउंट वी फाइंड देयर इज़ अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 10,000 रुपीज़। अब इस क्रेडिट बैलेंस को भी हम समझ लेते हैं, ये क्या होता है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब हो गया कि उसने हमें 30 की फर्नीचर दिया है, हमने उसको भी सिर्फ 20,000 दिए हैं, 5,000 इन कैश एंड 50,000 बाय चेक। दैट मीन्स 10,000 रुपये हमने उसको भी और देने हैं। सो क्रेडिट बैलेंस मीन्स दैट वी ओ हिम, मॉडर्न फर्नीचर को हमने 10,000 रुपये देना है। अब इस सारी ट्रांजैक्शंस को अगर हम एनालाइज करेंगे कितना ईजी हो गया। सो जस्ट बाय लुकिंग एट एन अकाउंट वील बी एबल टू मेक आउट कि उस अकाउंट में उस ट्रांजैक्शन या उस अकाउंट की क्या पोजीशन है, उस चीज़ की क्या पोजीशन है, चाहे इट इज़ मॉडर्न फर्नीचर, चाहे लैपटॉप, चाहे सैलरी, चाहे बैंक। जितने अकाउंट हमने देखे हैं, जस्ट बाय लुकिंग एट दैट अकाउंट हमारे को उस अकाउंट के पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट दैट पर्टिकुलर अकाउंट। So friends, this was the principle or the rules of debit and credit, the important fundamental of account. We'll build on this particular fundamental in our next session, but please remember the most important session 2A. Thank you. Thanks a lot. To quickly summarize the session, we have learned the principles of accounting.
We've also learned the rules of debit and credit. Debit the receiver, credit the giver. Debit what comes in, credit what goes out. Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. We also learned the process of analyzing and recording the financial transactions using these rules of debit and credit. Thank you for watching, and we'll see you in the next one.